بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں ایک سوداگر تھا، بصرہ کا رہنے والا، بڑا مالدار۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ اللہ کا کرنا کہ وہ تاجر مر گیا، خدا اس پر رحمت کرے، اور ساری دولت وارثوں کے لیے چھوڑ گیا۔ دونوں بیٹوں نے باپ کی تجہیز و تکفین کے بعد مال و اسباب آپس میں برابر برابر تقسیم کر کے دکانیں کھول لی۔ ایک پیتل کے برتن بیچنے لگا اور دوسرے نے سونار کا کام شروع کر دیا۔ ایک دن یہ سونار اپنے ٹھیے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اجمی بازار کی سیر کرتا ہوا اس کی دکان پر پہنچا اور اس کی کاریگری دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس سونار کا نام حسن تھا۔ اجمی اپنا سر ہلانے لگا اور کہا کہ قسم خدا کی تو بڑا اچھا سونار ہے۔ وہ حسن کی کاریگری کو دیکھ رہا تھا۔ حسن اپنے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب لیے پڑھ رہا تھا۔ لوگ اس کے حسن و جمال پر مہو تھے۔ جب عصر کا وقت ہوا اور دکان لوگوں سے خالی ہو گئی تو اجمی نے حسن کے پاس آ کر کہا، بیٹا تو بڑا خوشرو جوان ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ تو بے باپ کا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں۔ مجھے ایک کاریگری آتی ہے جس سے پڑھ کر دنیا میں کوئی ہنر نہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا، مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں سکھا دوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی سکھانا پسند نہ کیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے سکھا دوں اور تجھ کو اپنا بیٹا بنا لوں، تاکہ فکر و فاقے سے تجھے نجات ملے اور اس پیشے سے تیرا پیچھا چھوٹے جس میں نہائی اور ہتھوڑا بھٹی اور آگ کی تکلیف ہے۔ حسن نے پوچھا کہ اے میرے آقا، تو مجھے کب سکھائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں کل تیرے پاس آ کر تیرے سامنے پیتل سے خالص سونا بناؤں گا۔ حسن یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اجمی سے رخصت ہو کر اپنی ماں کے پاس گیا، سلام کیا اور اس کے ساتھ کھانے کے بعد نہایت حیرانی سے اجمی کا سارا ماجرا سنایا۔ ماں نے کہا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کی باتیں نہ مانا کر، خاص کر اجمیوں کی بات تو ہرگز نہیں سننی چاہیے، کیونکہ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں اور کیمیا گری جانتے ہیں۔ لوگوں کو جال میں پھانس کر ان کا مال لے اڑتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں۔ حسن نے کہا، اماں ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا کہ کوئی اس کے لالچ میں ہم کو جال میں پھانسے گا؟ اور یہ اجمی تو ایک بوڑھا ہے، نیکی اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے، خدا نے اسے میرے اوپر مہربان کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں مارے غصے کے چپ ہو گئی، مگر بیٹے کا دل اسی میں لگا رہا اور مارے خوشی کے وہ رات بھر سویا ہی نہیں۔ جب صبح ہوئی تو حسن اٹھا اور کنجیاں لے کر دکان کھولی ہی تھی کہ اجمی آ پہنچا۔ حسن اٹھ کھڑا ہوا اور چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ چومے، لیکن اس نے اسے روک دیا اور اس بات کو پسند نہ کیا۔ حسن سے کہا کہ وہ تھالی کو آگ پر رکھ اور دھوکنے لگا۔ حسن نے اجمی کے کہنے کی تعمیل کی اور کوئلے دکھائے۔ اجمی بولا، بیٹا تیرے پاس پیتل ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک ٹوٹا ہوا پیالہ ہے۔ اجمی نے کہا، اسے کینچی سے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر۔ حسن نے اس کے کہنے کے مطابق اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹے اور انہیں گٹھالی میں ڈال کر دھوکنی سے ہوا دینی شروع کی، یہاں تک کہ وہ پگھل کر پانی ہو گئے۔ اب اجمی نے اپنا ہاتھ پگڑی کی طرف بڑھایا اور اس میں سے ایک لپٹا ہوا کاغذ نکالا اور آدھے درہم کے برابر کوئی صفوف نکال کر گٹھالی میں ڈال دیا۔ یہ صفوف زرد سرمے کی طرح کا تھا۔ اب اس نے حسن سے کہا کہ اور دھوک۔ حسن اور دھوکنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ یہ دیکھ کر حسن کے ہوش و حواس مارے خوشی کے جاتے رہے۔ وہ اس ٹکڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور اسے چھری سے کھرچ کر دیکھا تو عمدہ قسم کا کندن تھا۔ اس کی مسرت کا کیا پوچھنا، چاہتا تھا کہ جھک کر اجمی کا ہاتھ چوم لے۔ اجمی نے اسے روک دیا اور کہا، اس ٹکڑے کو بازار میں لے جا اور بیچ کر دام کھڑے کر، مگر کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے۔ حسن نے بازار میں جا کر وہ ٹکڑا دلال کو دیا۔ دلال نے اسے لے کر کسوٹی پر لگایا اور دیکھا کہ وہ خالص سونا ہے۔ 10,000 درہم سے اس کی بولی شروع ہوئی۔ سوداگر بڑھ بڑھ کر بولی بولنے لگا، یہاں تک کہ 15,000 درہم تک دام لگ گئے۔ گھر جا کر حسن نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اماں میں اس صنعت کو سیکھ گیا ہوں۔ ماں ہنسی اور کہنے لگی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول پڑھ کر مارے غصے کے چپ ہو گئی۔ حسن بھولے پن سے ایک ہاون دستہ لے کر اجمی کے پاس گیا جو دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تو اس ہاون دستے کا کیا کرنا چاہتا ہے؟ حسن نے جواب دیا کہ اس کو بھی آگ پر پگھلا کر سونے کے ڈلے بنا لے۔ اجمی ہنس کر بولا، بیٹا کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے کہ تو ایک ہی دن میں 2 سونے کے ڈلے لے کر بازار جائے گا؟ تجھے معلوم نہیں کہ لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے اور ہمیں مار ڈالیں گے؟ بیٹا جب تم مجھ سے یہ فن سیکھ جائے تو اسے سال میں ایک بار سے زیادہ مت کیجیے، اور وہ تیرے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک کافی ہوگا۔ حسن کہنے لگا، اے میرے آقا تو ٹھیک کہتا ہے، اور دکان میں بیٹھ کر اس نے گٹھالی آگ پر چڑھا دی اور بھٹی میں کوئلے ڈال دیے۔ اجمی نے کہا، بیٹا اب تیرا کیا مطالبہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ فن مجھے سکھا دے۔ اجمی نے ہنس کر کہا،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بیٹا تو بڑا کام عقل ہے اور اس فن کے سیکھنے کے بالکل ناقابل۔ کبھی کوئی اس فن کو بیچ سڑک پر یا بازاروں میں سیکھ سکتا ہے؟ اگر ہم نے اس جگہ یہ کام شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ ہم کیمیا گر ہیں، اور جب اس کی خبر حکام تک پہنچے گی تو وہ ہماری جان کے گاہک ہو جائیں گے۔ بیٹا اگر تو یہ کام سیکھنا چاہتا ہے تو میرے گھر چل۔ حسن نے اٹھ کر دکان بند کی اور اجمی کے ساتھ ہو لیا، مگر راستے میں اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی اور اس کے دل میں کشمکش ہونے لگی۔ وہ دیر تک سر نیچے کیے کھڑا رہا۔ جب اجمی نے دیکھا کہ وہ رک گیا ہے تو ہنسا اور بولا، تیرا دل تو نہیں الٹ گیا؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے نقصان پہنچاؤں گا تو پھر میرے دل میں تیری طرف سے کیوں کر بھلائی آ سکتی ہے؟ اگر تو میرے گھر سے ڈرتا ہے تو میں تیرے گھر چل کر وہاں تجھے سکھا سکتا ہوں۔ حسن نے کہا، ہاں چچا۔ اجمی بولا کہ اچھا میرے آگے آگے چل۔ حسن آگے آگے اپنے گھر کی طرف چلا اور اجمی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ گھر پہنچ کر حسن اندر گیا اور ماں سے مل کر کہا کہ اجمی میرے ساتھ آیا ہے اور دروازے پر کھڑا ہے۔ ماں نے فرش بچھایا اور مکان کو آراستہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد حسن نے اجمی سے کہا کہ اندر آ جا، اور وہ اندر آ گیا۔ حسن ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر بازار گیا تاکہ کھانے کے لیے کوئی چیز لے آئے، اور کھانا لا کر اجمی کے آگے رکھ دیا اور کہا، اے میرے آقا، آئیے پہلے کچھ نوش فرما لیجیے تاکہ ہمارے درمیان روٹی اور نمک کا واسطہ ہو جائے، اور ہم میں سے جو کوئی روٹی اور نمک کے بارے میں خیانت کرے خدا اس سے نمٹے۔ اجمی بولا کہ بیٹا تو سچ کہتا ہے، اور پھر مسکرا کر کہا کہ بیٹا روٹی اور نمک کا پاس کرتا کون ہے؟ اس کے بعد اجمی آگے بڑھا اور حسن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، یہاں تک کہ دونوں سیر ہو گئے۔ اجمی نے کہا کہ بیٹا حسن، ہمارے لیے مٹھائی لا۔ حسن اجمی کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا اور بازار جا کر 10 قسم کی مٹھائی لے آیا اور اس کے آگے رکھ دی۔ دونوں نے مل کر مٹھائی کھائی۔ مٹھائی کھا چکے تو اجمی نے کہا، خدا تجھے اس نیکی کا بدلہ دے، واقعی تو ایسا شخص ہے کہ لوگ تیرا ساتھ دے، اپنے بھید تجھ پر ظاہر کریں اور تیرے فائدے کی باتیں تجھے سکھا دے۔ پھر اجمی بولا، اے حسن بیٹا سامان لے آ۔ حسن کو ان باتوں کا یقین نہ آتا تھا، تاہم وہ تیزی سے روانہ ہوا اور دکان پہنچ کر اس نے سارا سامان لیا اور واپس آ کر اسے اجمی کے آگے رکھ دیا۔ اجمی نے کاغذ کی ایک پڑیا نکالی اور کہنے لگا، اے حسن، روٹی اور نمک کی قسم، اگر تو مجھے میرے بیٹے سے زیادہ عزیز نہ ہوتا تو تجھے میں یہ فن نہ سکھاتا۔ اس وقت میرے پاس محض یہی اکسیر باقی ہے جو اس کاغذ میں ہے، لیکن صبر کر، میں جڑی بوٹیوں کو ملا کر تیرے لیے اکسیر بنا دوں گا۔ اے میرے بیٹے، اے حسن، سن، جو اکسیر اس کاغذ میں ہے اس کا نصف درہم 5 سیر پیتل کے لیے کافی ہے، جو اسے 5 سیر خالص سونا بنا دے گا۔ اے میرے بیٹے حسن، اس کاغذ میں 1.5 چٹان اکسیر ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو میں تجھے اور بنا دوں گا۔ حسن نے کاغذ کی پڑیا کو لے کر دیکھا، اسے اس میں پہلے سے بھی عمدہ کوئی پیلی چیز نظر آئی۔ کہنے لگا، اے میرے آقا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ کہاں پائی جاتی ہے اور کس طرح بنائی جاتی ہے؟ اجمی حسن کا بڑھتا ہوا لالچ دیکھ کر ہنسا۔ اس نے کہا، آخر تو کتنی باتیں پوچھے گا، چپ چاپ اپنا کام کیے جا۔ حسن گھر میں سے جا کر ایک رکابی لے آیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر کوٹھالی میں ڈال دیے۔ جب وہ پگھل گئے تو پڑیا کی تھوڑی سی دوا لے کر ڈال دی اور وہ خالص سونا ہو گیا۔ حسن باغ باغ ہو گیا۔ سونے کے ڈلے نے اس کی عقل کو چکر میں ڈال دیا۔ اب اجمی نے اپنی پگڑی میں سے تیزی کے ساتھ ایک تھیلی نکالی جس میں کوئی ایسی نشاور چیز تھی کہ اگر اسے ہاتھی بھی سونگھ لیتا تو ایک دن سے دوسرے دن تک سوتا رہتا۔ اس نے اس میں سے تھوڑی سی لے کر چپکے سے مٹھائی میں ملا دی اور کہا، اے حسن، اب تو ہی میرا بیٹا ہے اور میرے جان و مال سے زیادہ عزیز ہے۔ میری ایک بیٹی ہے، اس سے میں تیرا نکاح کر دوں گا۔ حسن نے کہا، میں تیرا غلام ہوں اور جو بھی بھلائی تو میرے ساتھ کرے گا وہ خدا کے پاس جمع رہے گی۔ اجمی نے کہا کہ بیٹا صبر سے کام لے، پھر تیرے لیے بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ مٹھائی حسن کو دی۔ اس نے اس کا ہاتھ چوم کر اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ غائب میں اس کے لیے کیا پوشیدہ ہے۔ مٹھائی کا نکلنا تھا کہ اس کا سر اس کے پاؤں سے آگے آگے چلنے لگا اور وہ دنیا سے غائب ہو گیا۔ جب اجمی نے دیکھا کہ بلا حسن کے اوپر نازل ہو چکی ہے تو بہت خوش ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے مردود، اے عرب کتے، آخر تو میرے جال میں پھنس گیا۔ اے حسن، میں کئی سال سے تیری تلاش میں تھا اور اب تو قابو میں آ گیا ہے۔ بلا کے تو میری جال میں پھنس گیا اور اپنی کمر کسی۔ اس نے حسن کی مشقیں باندھی، ہاتھ پاؤں ملا کر باندھ دیے اور ایک صندوق لیا، اسے خالی کر کے اس میں حسن کو بند کیا اور کفل ڈال دیا۔ پھر اس نے دوسرا صندوق کھولا، اس کی ساری چیزیں نکال پھینکی اور حسن کا سارا مال متا سونے کے 2 ڈلوں سمیت صندوق میں بھرا۔ بازار سے حمال کو لایا، اس پر دونوں صندوق لادے اور انہیں شہر کے باہر لے جا کر سمندر کے کنارے اتارا۔ وہاں ایک کشتی لنگر ڈالے کھڑی تھی۔ اس کشتی میں غلام تھے اور ناخدا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ملاحوں کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے پاس آئے اور دونوں صندوقوں کو لے جا کر کشتی میں رکھ دیا۔
आजमी ने नाखुदा और सब मलाहों को पुकार कर कहा कि तैयार हो जाओ, हमारी हाजत पूरी हो चुकी है और मुराद बार आई है। नाखुदा ने मलाहों से कहा कि लंगर उठाओ और बादबान खोल दो। हवा मुवाफिक थी, कश्ती चल निकली। ये तो अजमी और हसन का किस्सा हुआ। अब हसन की माँ का हाल सुनो। उसने इशा के वक्त तक इंतजार किया, मगर जब न उसे कोई खबर मिली, बल्कि आवाज तक न सुनाई दी, तो वो घर को खुला देखकर उसके अंदर आई। उसने देखा ना वहां कोई शख्स है, न संदूक, न माल। उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा खो गया और जो किस्मत में बदी थी पूरी हो गई। वो अपना मुंह पीटने लगी, कपड़े फाड़ डाले और वावेला करना शुरू कर दिया। कभी रोती, कभी कहती कि हाय मेरे बेटे और मेरे दिल के फूल। जब वो सुबह तक इसी तरह रोती रही तो पड़ोसियों ने आकर उसके बेटे का हाल पूछा। उसने वो सारा माजरा बयान कर दिया जो उसे अजमी के साथ पेश आया था, और उसे यकीन हो गया कि वो अब अपने बेटे को न देख सकेगी। वो घर में दीवानों की तरह फिरती और वो उसी तरह रोती पीटती रही। पड़ोसियों ने दुआ की कि उसे सब्र आ जाए और उसका बेटा मिल जाए, और उससे रुखसत होकर चले गए। मगर वो दिन रात बराबर रोती रही और घर के बीच में एक कब्र बनाकर उस पर हसन का नाम और उसके खो जाने की तारीख लिख दी। वो हमेशा उसी कब्र के पास पड़ी रहती, और जिस दिन से उसका बेटा उससे जुदा हुआ था उसका यही दस्तूर था। ये तो माँ का किस्सा हुआ। अब सुनो कि हसन को अजमी के साथ क्या माजरा पेश आया। यह अजमी मजूसी था। मुसलमानों से उसको बड़ी नफरत थी। जब उसका दाव किसी मुसलमान पर चल जाता तो उसे बेतबाह किए न छोड़ता, क्योंकि वो खबीस और मलून और खुद गर्ज कीमियागर था। इस मरदूद का नाम बहराम मजूसी था। वो हर साल किसी न किसी मुसलमान को पकड़कर किसी खास मतलब के लिए जिबाह कर डालता था। जब उसकी चाल सुनार हसन पर चल गई और वो उसे लेकर चला सुबह से शाम तक, और फिर शाम से दूसरी सुबह तक चलने के बाद कश्ती ने एक साहिल पर लंगर डाला। दम लेकर कश्ती आगे चली। जब दिन निकल आया तो अजमी ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि वो संदूक ले आए जिसके अंदर हसन बंद है। वो ले आए तो उसने संदूक खोलकर हसन को निकाला, उसे सिरका सुंघाया और उसकी नाक में कोई सफ़फ फूका। हसन को छींक आई और जो चीज मिठाई में मिलाकर उसे खिलाई थी केक के जरिए से बाहर निकल गई। हसन आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वो बीच समंदर में है, कश्ती चली जा रही है और अजमी उसके पास बैठा हुआ है। उसे यकीन आ गया कि अजमी का फरेब कारगर हो गया और वो उसी बला में गिरफ्तार है जिससे उसकी माँ उसे डराती थी। उसने लाहौला पढ़कर खुदा से दुआ मांगी, ए आलिमों के परवरदिगार, मेरी तकदीर में मेहरबानी से काम ले और अपने इम्तिहान में मुझे सब्र अता कर। उसके बाद उसने अजमी की तरफ नरमी के साथ मुखातिब होकर कहा, ए मेरे वालिद, ये तूने क्या हरकत की और क्या हुआ उस रोटी और नमक को, और कहाँ गई वो कसम जो तूने मेरे साथ खाई थी। अजमी ने आंखें निकाल कर कहा, कुत्ते, क्या दुनिया में लोग रोटी और नमक का पास करते हैं? मैंने तेरी तरह एक कम 1000 लोगों को कत्ल किया है और तेरे बाद पूरे 1000 हो जाएंगे। ये कहकर उसने हसन को डांटा। हसन ने जुबान रोक दी। हसन को यकीन हो गया कि किस्मत का तीर उसे आ लगा है। अजमी मलून ने अब हुक्म दिया कि उसकी मशकें खोल दी जाए और लोगों ने उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना शुरू किया। मजूसी हंस रहा था और कहता जाता था कि आग और रोशनी, साया और गर्मी की कसम, मैं ये ना समझता था कि तू मेरे जाल में फंस जाएगा, लेकिन आग के तुफैल मैंने तुझ पर काबू पा लिया और उसकी मदद से तुझे दान कर लिया, यहां तक कि मेरी हाजत पूरी हो गई। अब मैं घर वापस जाकर तुझे आग पर कुर्बान करूंगा ताकि वो मुझसे राजी हो जाए। हसन ने कहा, तूने रोटी और नमक के मामले में मुझसे खयानत की। वो शायद कुछ और भी कहता, लेकिन मजूसी ने हाथ उठाकर उसे ऐसी 2 हथड़ मारी कि उसके दांत जमीन पर गिर गए। उस पर गशी तारी हो गई और उसके आंसू बहने लगे। मजूसी ने अपने गुलामों से कहा कि आग जला। हसन ने पूछा कि तू आग में जलाकर क्या करेगा? उसने जवाब दिया कि यह आग रोशनी और चिंगारियों की साथी है और मैं इसकी इबादत करता हूँ। अगर तू भी मेरी तरह उसकी पुरस्तिश करे तो मैं अपनी आधी दौलत तुझे दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूंगा। हसन ने उसे डांट कर कहा कि ए मरदूद, तू काफर मजूसी है और उस खुदा को छोड़कर जिसने दिन रात पैदा किए हैं आग को पूजता है। इन्हीं वजहों से तमाम मजहबों पर मुसीबत आई है। ये सुनकर मजूसी तेश में आ गया और कहने लगा कि ए अरब कुत्ते, क्या तू मेरा कहना न मानेगा और मेरे मजहब की पैरवी न करेगा? लेकिन हसन ने बिल्कुल उसकी बात न मानी। मलून मजूसी ने उठकर आग के आगे सजदा किया और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि हसन को ऊंधा लिटाए, और जब उन्होंने उसे पलट दिया तो मजूसी ने उसे ऐसे कोड़े से मारना शुरू किया जो चमड़े के तस्मों से गुंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी खाल फट गई। वो दुहाई देता लेकिन कोई उसकी दुहाई न सुनता। वो मदद के लिए चिल्लाता मगर कोई उसकी मदद को ना आता। बिलाखिर उसने अपनी नजर ऊपर खुदा की तरफ उठाई और उसे रसूलुल्लाह का वास्ता दिया। उसका सब्र जाता रहा। आंसू रुखसारों पर मीने की तरह बरसने लगे। मजूसी ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि उसे बैठाए और उसके आगे खाना पीना रखे। गुलाम खाना पीना ले आए
लेकिन हसन ने दाना खाया ना पानी पिया। मजूसी रास्ते भर उसे दिन रात तकलीफें देता, वो सब्र करता। जितना हसन खुदा के आगे गिड़गिड़ाता, मजूसी का दिल उसकी तरफ से सख्त होता जाता। इसी तरह वो 3 महीने तक समंदर में सफर करते और हसन को तकलीफ पहुंचाते रहे। जब पूरे 3 महीने गुजर चुके तो खुदा की तरफ से एक आंधी आई। समंदर तारीक हो गया, कश्ती उछलने लगी। ना खुदा और मलाहों ने कहा कि खुदा की कसम, हम पर इसी लड़के का सब्र पड़ा है जिसे मजूसी 3 महीने से तकलीफ दे रहा है। खुदा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। ये कहकर उन्होंने मजूसी पर धावा बोल दिया, उसके गुलाम और साथियों को मार डाला। जब मजूसी ने देखा कि उसके गुलाम मार डाले गए हैं तो वो डरा कि कहीं मुझे भी मार न डाला जाए। उसने हसन की मशकें खोल दी, उसके फटे पुराने कपड़े उतार कर उसे दूसरे कपड़े पहना दिए, उससे सुलह की दरख्वास्त की और कहा कि मैं तुझे वो फन सिखा दूंगा और तुझे तेरे वतन पहुंचा दूंगा। बेटा मैंने जो कुछ किया है उसका बदला मत निकाल। हसन बोला कि अब मैं तेरा क्यों कर यकीन कर सकता हूँ। उसने कहा कि बेटा, अगर दुनिया में गुनाह ना होता तो मगफिरत भी ना होती, और मैं तो तेरे सब्र का इम्तिहान कर रहा था, और तुझे ये तो मालूम ही है कि जो खुदा करता है वही होता है। हसन की रिहाई पर मल्हा और ना खुदा खुश हो गए। हसन ने उनको दुआ दी और खुदा की तारीफ की, उसका शुक्र बजा लाया। अब आंधी रुक गई और अंधेरा जाता रहा। कश्ती बाद मुवाफिक के साथ चलने लगी। हसन ने मजूसी से पूछा कि अजमी, तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि बेटा, मैं जबल अस्साहब जा रहा हूँ, जहाँ वो अक्सीर मिलती है जिसे हम कीमिया बनाते हैं। उसके बाद मजूसी ने हसन के आगे आग रोशनी की कसम खाकर कहा कि अब तुझे मुझसे डरने की कोई वजह नहीं। मजूसी की ये बातें सुनकर हसन खुश हो गया, उसे इत्मीनान हो गया। अब मजूसी उसके साथ खाने पीने बैठने उठने लगा, उसे अपने कपड़े पहनने को दिए। 3 महीने सफर करने के बाद कश्ती ने एक बहुत लंबी खुश्की पर लंगर डाला, जहां सफेद, जर्द, नीले, काले और बाकी तमाम रंगों के कंकर पत्थर थे। जो ही कश्ती ने वहां लंगर डाला, अजमी उठ खड़ा हुआ और हसन से कहने लगा कि उतर, हम जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच गए। हसन उठ खड़ा हुआ और अजमी के साथ उतर पड़ा। मजूसी नाखुदा को अपना सामान सुपर्द करके हसन के साथ चल दिए। चलते चलते दोनों कश्ती से दूर नजरों से गायब हो गए। एक जगह ऐसी आई जहां मजूसी बैठ गया और अपनी जेब से एक छोटा सा तबला निकाला जो तांबे का था, और एक रेशमी डोरी जो सुनहरी तारों से बटी हुई थी और उस पर तिलस्मात लिखे हुए थे। फिर उसने उस तबले को बजाया। तबला बजते ही जंगल के पीछे से गिरद उठी। ये देखकर हसन को ताजुब हुआ। वो मजूसी से डरने लगा और उसके साथ उतरने पर पेशीमान हुआ और उसका चेहरा उतर गया। मजूसी ने उसकी तरफ देखकर कहा कि बेटा, तेरा चेहरा क्यों लाल हो गया है? कसम है आग और रोशनी की, अब तुझे मुझसे डरने की कोई बात नहीं। अगर मेरी मुराद बगैर तेरे नाम के पूरी हो सकती तो मैं तुझे हरगिज कश्ती से ना उतारता। खुश हो कि अब तेरे लिए भलाई ही भलाई है, और ये गिरद वो है जिस पर हम सवार होंगे और जो हमें इस जंगल के तय करने में मददगार होगी और हमारी मुश्किल आसान कर देगी। चुनाचे थोड़ी देर के बाद गर्द फटी और उसमें से 3 असील ऊँटनियां निकली। एक पर अजमी सवार हो गया और दूसरे पर हसन, और तीसरी पर उन्होंने सफर के लिए खाने पीने का सामान रख लिया और 7 दिन तक चलते रहे। एक बड़े मैदान में पहुंचकर वो ठहर गए और एक गुंबद देखकर जो 4 सुर्ख सोने के तंबों पर खड़ा था, ऊँटनियों पर से उतर पड़े। गुंबद के नीचे बैठकर खाया पिया और सुस्ताने लगे। इतने में हसन की नजर एक ऊंची इमारत पर पड़ी। वो कहने लगा कि चचा ये क्या है? मजूसी बोला, ये एक महल है। हसन ने कहा कि आओ इसके अंदर जाकर हम आराम करें और इसकी सैर करें। मजूसी उसके पास मुंह लाकर कहने लगा कि मेरे आगे इस महल का जिक्र मत कर, क्योंकि इसमें मेरा एक दुश्मन रहता है। उसके साथ मुझे एक किस्सा दरपेश है जिसके बयान करने का ये वक्त नहीं। ये कहकर उसने तबला बजाया और ऊँटनियां आ मौजूद हुई। दोनों उन पर सवार हो गए और 7 दिन तक चलते रहे। जब 8वां दिन हुआ तो मजूसी ने कहा कि ए हसन, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने कहा कि मुझे बादल ही बादल दिखाई देते हैं जो पूरब से पश्चिम तक फैले हुए हैं। मजूसी बोला कि ये बादल नहीं बल्कि एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है जिस पर बादल आकर टकराते हैं। वो इतना ऊंचा है कि उसके ऊपर कोई बादल नहीं जा सकता। हमारी मंजिल मकसूद यही पहाड़ है, क्योंकि जिस चीज की हमें तलाश है वो इसी पर मिलती है। इसी वजह से मैं तुझे अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि तेरे ही हाथों मेरी मुराद पूरी हो सकती है। ये सुनकर हसन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा और मजूसी से कहने लगा कि तुझे कसम है अपने माबूद की और अपने दीन की जिस पर तेरा ईमान है। वो तेरा कौन सा मकसद है जिसकी वजह से तू मुझे यहाँ लाया है? उसने जवाब दिया कि कीमिया की सनत बिला एक बूटी के मुकम्मल नहीं होती, जो ऐसी ही जगह उगती है जहाँ बादल टकरा कर अलग अलग हो जाते हैं, और वो यही पहाड़ है और उसी के ऊपर वो बूटी है। जब हमें वो बूटी मिल जाएगी तो मैं तुझे वो फन सिखा दूंगा। मारे डर के हसन ने कह दिया कि मेरे आका हाँ, मगर वो जिंदगी से हाथ धो बैठा और माँ और रिश्तेदारों और वतन की जुदाई पर रोने लगा।
और इस बात पर पछीमा था कि उसने अपनी माँ का कहना न माना। आखिर दोनों चलते चलते उस पहाड़ के पास जा पहुंचे और उसके नीचे ठहर गए। हसन ने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक महल है। वो मजूसी से पूछने लगा कि यह महल कैसा है। उसने जवाब दिया कि यह जिन्नों और भूत प्रेतों और शैतानों के रहने की जगह है। अब मजूसी अपनी ऊँटनी पर से उतरा और हसन से कहा कि तू भी उतर, और उठकर उसका सर चूमा और कहने लगा कि जो कुछ मैंने तेरे साथ किया है उसका बुरा न मान। जब तू महल में दाखिल होगा तो मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मगर मैं तुझे कसम देता हूँ कि तुझे जो चीज वहां मिले उसमें मेरे साथ धोखेबाजी मत कीजिए, उसमें मेरा और तेरा हिस्सा बराबर का है। हसन ने कहा सर आंखों पर। अजमी ने एक थैला निकाला और उसमें से एक चक्की निकाली और थोड़े से गेहूं निकालकर उस चक्की में पीसे और 3 टिक्कियां बनाई और आग जलाकर उन्हें पकाया। फिर वही तांबे का तबला और डोरी निकालकर तबला बजाया। ऊँटनियां आ मौजूद हुई। उसने उसमें से ऊँटनी को पकड़कर ज़िबा किया और उसकी खाल खींचकर हसन से कहा, ए मेरे बेटे, ए हसन, जो मैं कहता हूँ उसे कान धर कर सुन। उसने कहा, कहिए। मजूसी बोला, इस खाल के अंदर घुस जा, मैं उसे सीकर तुझे जमीन पर डाल दूंगा और सफेद गिद्ध आकर तुझे उठा ले जाएंगे और तुझे उड़ाकर उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे। ले इस छुरी को अपने साथ रख ले। जब वो उड़कर रुक जाए और तुझे यकीन हो जाए कि तू पहाड़ पर पहुंच गया है तो तू खाल चाक करके निकल आइयो। गिद्ध तुझसे डरकर भाग जाएंगे और तू पहाड़ पर नीचे देखकर मुझसे बात कीजिए ताकि मैं बता दूं कि तुझे क्या करना है। उसके बाद उसने 3 टिक्कियां और एक कोसा पानी का उसके साथ खाल के अंदर रख दिया और खाल को सी दिया। सफेद गिद्धों ने आकर उसे उठा लिया और उड़कर पहाड़ पर पहुंचे और उसे वहां रख दिया। जब हसन को यकीन हो गया कि गिद्धों ने उसे पहाड़ पर रख दिया है तो उसने खाल चाक कर दी और उसमें से निकलकर मजूसी को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर मजूसी इतना खुश हुआ कि मारे खुशी के नाचने लगा और कहा कि पीछे की तरफ जा और जो कुछ तुझे नजर पड़े मुझसे कह। हसन ने जाकर देखा कि बहुत सी सड़ी हुई हड्डियां पड़ी हैं और उनके पास बहुत सी लकड़ियां हैं। उसने मजूसी से कहा कि उसे ये चीजें दिखाई देती हैं। मजूसी बोला कि बस यही मेरा मकसद है, उन लकड़ियों के 6 गट्ठर बांधकर मेरे पास फेंक दे, उन्हीं से हम कीमिया बनाते हैं। जब हसन ने 6 गट्ठर बनाकर फेंक दिया और मजूसी ने देख लिया कि वो उसके पास पहुंच गए हैं तो हसन से कहने लगा, ए मौत के शिकार, जो मेरी मर्जी तुझसे थी वो पूरी हो गई। अब ख्वाह तू पहाड़ पर बैठा रहे और ख्वाह जमीन पर कूद कर मर जा। ये कहकर मजूसी चलता बना। हसन ने लाहौल पढ़ी और कहा कि ये कुत्ता मेरे साथ चाल चल गया, और वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। कभी पहाड़ पर इधर जाता, कभी उधर। उसे यकीन था कि अब मैं हलाक हो जाऊंगा। इसी असना में जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि पहाड़ से मिला हुआ एक नीला समंदर है जो पहाड़ पर बराबर मौजें मार रहा है। वो बैठकर जो कुछ कुरान में से याद था पढ़ने लगा और खुदा से दुआ मांगी कि मेरी मुश्किल आसान कर दे, ख्वाह मौत से या इन मुसीबतों से छुटकारे से। फिर खुद अपने ऊपर जनाजे की नमाज पढ़कर समंदर में कूद पड़ा। मौजों ने उसे ले जाकर खुदा की कुदरत से सही सलामत खुशकी पर पहुंचा दिया। उसने खुदा की तारीफ की, शुक्र बजा लाया और उठकर खाने की कोई चीज ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पहुंच गया जहां मजूसी ने उसे खाल में सिया था। आगे बढ़ा और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े ऊंचे महल के पास जा निकला। यह वही महल था जिसके बारे में उसने मजूसी से पूछा था और उसने कहा था कि इसमें मेरा एक दुश्मन रहता है। हसन अपने दिल में कहने लगा कि इस महल में जरूर जाना चाहिए, मुमकिन है कि वहां पहुंचकर मुझे खुशी हासिल हो। उसने देखा कि महल का दरवाजा खुला हुआ है और वो दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक चौकी पर 2 लड़कियां बैठी हुई हैं जो चांद की तरह हैं। उनके बीच में शतरंज की बसात बिछी हुई है और वो खेल रही हैं। उनमें से एक ने सर उठाया और मारे खुशी के चिल्ला उठी कि खुदा की कसम, ये इंसान है और मेरे ख्याल में ये वही है जिसे मजूसी बहराम लाया होगा, जिसे मजूसी बहराम यहाँ लाया होगा। उसकी बातें सुनकर हसन उनके आगे गिर पड़ा और जारो जार रोने लगा। ए परीजादो, खुदा की कसम में बेचारा वही हूँ। अब छोटी लड़की ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तू गवाह रही हो कि मैं खुदा से एहदो पेमा करती हूँ कि ये मेरा भाई है, इसकी मौत मेरी मौत है और इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी है, इसकी खुशी मेरी खुशी और इसका गम मेरा गम है। ये कहकर वो उठी और उसे गले लगाकर बोसा दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी बहन के साथ साथ महल में दाखिल हुई। उसके फटे पुराने कपड़े उतारकर शाहाना लिबास पहनवाया और तरह तरह के खाने तैयार करके उसके आगे रखे। उसने और उसकी बहन ने हसन के साथ बैठकर खाना खाया और उसे कहा कि जब से तू उस काफर जादूगर के पंजे में फंसा है उसी वक्त से लेकर उससे छुटकारा पाने तक की दास्तां सुना। उसके बाद हम भी सुनाएंगे कि हमें उसके साथ शुरू से लेकर आखिर तक क्या पेश आया, ताकि अगर तू फिर उसे देखे तो उससे खबरदार रहे। उनकी ये बातें सुनकर और उनकी आवभगत देखकर हसन की जान में जान आई और उसके होश दुरुस्त हुए और उसने अपना सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिया। लड़कियों ने कहा, तूने उससे इस महल के बारे में भी पूछा था?
اس نے جواب دیا ہاں پوچھا تھا، اور اس نے جواب دیا تھا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس پہ شیطان اور ابلیس رہتے ہیں۔ یہ سن کر لڑکیاں تیش میں آ گئی اور کہنے لگی یہ کافر ہمیں شیطان اور ابلیس کہتا ہے۔ حسن نے جواب دیا کہ ہاں۔ چھوٹی لڑکی جو حسن کی بہن بنی تھی بولی کہ قسم ہے خدا کی کہ میں اسے ایسی بری موت ماروں گی کہ پھر اسے دنیا نصیب نہ ہوگی۔ حسن نے پوچھا کہ تیری پہنچ اس تک کیسے ہوگی اور تو اسے کس طرح قتل کرے گی؟ وہ تو بڑا مکار جادوگر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مشید نامی باغ میں رہتا ہے اور میں اسے عنقریب مار ڈالوں گی۔ اس کی بہن بولی کہ حسن سچ کہتا ہے اور جو کچھ بھی اس نے اس کتے کے بارے میں کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اسے ہماری ساری داستان بھی سنا دے تاکہ وہ بھی اس کے ذہن میں رہے۔ اب چھوٹی بہن نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرے بھائی، ہم شہزادیاں ہیں اور ہمارا باپ جنوں کا ایک عظیم شان بادشاہ ہے اور اس کے پاس دیووں کا بہت بڑا لشکر ہے۔ خدا نے اسے ایک ہی بیوی سے 7 بیٹیاں دی ہیں اور اس میں اتنی غیرت اور رشک اور رحمیت ہے کہ اس نے ہماری شادی بھی اب تک کسی سے نہیں کی۔ ایک بار اس نے اپنے وزیروں اور مصاحبوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ کیا تم مجھے کسی ایسی جگہ کا پتہ دے سکتے ہو جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو سکتی ہو، نہ انسانوں کی اور نہ جنات کی، اور جہاں بہت سے درخت اور میوے اور چشمے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ، تو اسے کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی 7 بیٹیوں کو وہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جبل صاحب کا محل ان کے لیے مناسب ہوگا، جسے ان جنوں میں سے ایک جن نے بنایا تھا جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ جب سے وہ مارا گیا ہے اس میں کوئی نہیں رہتا، نہ انسان نہ جن، کیونکہ وہ اتنی دور ہے کہ کسی کی پہنچ نہیں۔ اس کے ارد گرد درخت اور پھل اور چشمے ہیں جن کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سرد ہے۔ اگر کسی کو کوڑ وغیرہ ہو اور وہ اس پانی کو پی لے تو فوراً اچھا ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے باپ نے یہ سنا تو ہمیں اس محل میں بھیج دیا اور ہمارے ساتھ بڑا لاؤ لشکر کر دیا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ جب وہ سوار ہونا چاہتا ہے تو ڈھول بجتا ہے اور ساری فوجیں آ کر اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہیں اور وہ ان میں سے چن لیتا ہے کہ کون کون اس کے ساتھ سوار ہو۔ باقی لوگ لوٹ جاتے ہیں، اور جب ہمارا باپ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ اپنے ماتحت جادوگروں کو حکم دیتا ہے کہ ہمیں آ کر لے جائیں، اور وہ ہمارے پاس آ کر ہمیں اس کی خدمت میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم اس جگہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہماری باقی 5 بہنیں بھی ہیں جو اس وقت جنگل میں شکار کرنے کو گئی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں بے شمار جنگلی جانور ہیں۔ ہم میں سے 2 باری باری کھانا پکانے کے لیے یہاں ٹھہر جاتی ہیں۔ آج میری اور میری اس بہن کی باری ہے اور ہم کھانا پکانے کے لیے ٹھہرے ہیں۔ ہم خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ وہ کسی انسان کو یہاں بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ خوش ہوں۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے تجھے ہمارے پاس بھیج دیا، تجھے یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ یہ سن کر حسن خوش ہو گیا اور کہنے لگا شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے چھٹکارے کے راستے پر لگا دیا اور اپنے بندوں کے دلوں کو میری طرف سے نرم کر دیا۔ اب اس کی بہن اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کمرے میں لے گئی اور وہاں سے ایسے ایسے لباس اور فرش نکال کر لائی جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بہنیں بھی سیر و شکار سے لوٹیں۔ اس نے ان سے حسن کا ذکر کیا، وہ بھی خوش ہوئیں اور کمرے میں جا کر اسے سلام کیا اور اس کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ حسن ان کے ساتھ بڑے عیش و عشرت سے رہنے لگا، ان کے ساتھ سیر و شکار کو جاتا اور شکار کو مار کر ذبح کرتا۔ غرض کہ بہت جلد وہ ان سے مانوس ہو گیا اور ان کے ساتھ رہتے رہتے اس کے بدن میں توانائی بھی آ گئی، رنگ روپ نکل آیا اور وہ ان کے ساتھ اس خوبصورت محل میں سیر کرتا، باغوں اور پھولوں کے مزے لیتا، اور وہ اس کی خاطر تواضع کرتی، بات چیت سے اس کا دل بہلاتی۔ اس سے اس کے دل کی گھبراہٹ جاتی رہی اور لڑکیاں اس کی وجہ سے خوش و خرم رہنے لگی۔ جتنی ان کو اس سے خوشی ہوتی اس سے زیادہ اسے ان سے۔ اس کے بعد چھوٹی بہن نے بہرام مجوسی کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اس نے ہمیں شیطان اور ابلیس اور بھوت بتایا ہے۔ اس پر سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہم اسے بے قتل کیے نہ مانیں گے۔ جب دوسرا سال ہوا تو وہ ملعون ایک خوبصورت مسلمان جوان کو لے کر آیا جو چاند کا ٹکڑا تھا۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور وہ سخت تکلیف میں تھا۔ اس جوان کو لے کر وہ اسی محل کے نیچے اترا جہاں حسن لڑکیوں کے ساتھ تھا۔ حسن درختوں کے نیچے ایک چشمے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجوسی کو دیکھ کر حسن سنار کا دل دھڑکنے لگا، اس کا رنگ لال ہو گیا اور وہ ہاتھ مالنے لگا، اور اس نے لڑکیوں سے کہا کہ بہنوں، خدا کے لیے اس ملعون کو قتل کرنے میں میری مدد کرو۔ دیکھو وہ آ گیا ہے اور تمہارے قبضے میں ہے۔ اس کے ساتھ ایک جوان مسلمان قیدی ہے جو کسی بڑے آدمی کا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ مجوسی اسے سخت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے قتل کر دوں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے اور جوان کو اس کے ہاتھوں تکلیف سے چھٹکارا ملے، میں ثواب لوں گا۔ اور مسلمان جوان اپنے وطن واپس جا کر اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے ملے۔ یہ تمہاری طرف سے خیرات ہوگی اور خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ لڑکیاں بولیں کہ اے حسن، تیرا اور خدا کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالی اور ہتھیار لگا کر کمر سے تلواریں باندھ لی
और हसन के लिए बेहतरीन घोड़ा मंगवा कर उस पर 4 जामा कसा और हसन के उम्दा उम्दा हथियार बांधे। उसके बाद सब चल खड़े हुए। उन्होंने देखा कि मजूसी एक ऊंट को ज़िबा करके उसकी खाल खींच चुका है और जवान को सख्त तकलीफ दे रहा है और उसे कह रहा है कि इस खाल के अंदर घुस। इतने में हसन पीछे से आ पहुंचा। मजूसी को उसकी खबर तक न हुई और इस जोर से ललकारा कि उसकी अकल जाती रही। वो बदहवास हो गया। अब हसन ने आगे बढ़कर कहा, ए मलून, ए खुदा और मुसलमानों के दुश्मन, ए कुत्ते, ए धोखेबाज, ए आतिश परस्त, ए गुनाहगारों के रास्ते पर चलने वाले, अपना हाथ रोक। जब तू आग और रोशनी की पुरस्तिश करता है और धूप छांव की कसम खाता है। मजूसी ने मुड़कर देखा और जो ही उसकी नजर हसन पर पड़ी वो कहने लगा, बेटा तू कैसे छूट कर जमीन पर उतर आया? हसन ने जवाब दिया कि एक आफर जंदीक, मुझे उस खुदा ने छुड़ाया जो तेरी जान इसी तरह तेरे दुश्मनों के हाथ से लेगा जिस तरह तूने मुझे रास्ते पर तकलीफें पहुंचाई है। अब तू मुसीबत में आ फंसा है और रास्ता भूल गया है। अब न माँ तुझे फायदा पहुंचा सकती है, न भाई, न दोस्त, न कोई पक्का एहदो पेमा। तेरा ही कौल है कि जो कोई रोटी और नमक में खयानत करता है खुदा उसका बदला लेता है। तूने रोटी और नमक में खयानत की है, इसलिए खुदा ने तुझे मेरे हाथ में दे दिया और अब तेरा छुटकारा मुझसे नामुमकिन है। मजूसी ने कहा कि बेटा खुदा की कसम में तुझे अपनी जान और अपनी आंखों की रोशनी से ज्यादा अजीज रखता हूँ। हसन ने कुछ नहीं सुना, बढ़कर उसे फुर्ती से उसकी गद्दी पर वार किया कि तलवार चमकती हुई उसकी गर्दन के आर पार हो गई और खुदा ने उसकी रूह को फौरन दोजख में पहुंचा दिया जो बुरी रहने की जगह है। उसके बाद हसन ने वो थैला लिया जो मजूसी के पास था और उसे खोलकर उसमें से तबला और डोरी निकाली और डोरी से तबला बजाया। उस पर ऊँटनियां बिजली की तरह हसन के पास आ पहुंची। उसने जवान की मशकें खोलकर उसे एक ऊँटनी पर बिठाया और दूसरी पर खाने पीने का सामान बांधकर उससे कहा कि अपने वतन जा। जो ही खुदा ने उसे हसन की बदौलत तकलीफ से निजात दी वो रवाना हो गया। जब लड़कियों ने देखा कि हसन ने मजूसी की गर्दन उड़ा दी है तो वो मारे खुशी के उसके इर्द गिर्द फिरने लगी और उन्हें उसकी बहादुरी और कुव्वत पर बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने इस कारगुजारी पर उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी और कहा कि ए हसन, तूने वो काम किया है जिससे बीमार शिफा पाते हैं और खुदा खुश होता है। अब वो लड़कियों को लेकर महल में गया और उनके साथ खाने पीने हंसी मजाक में मशगूल हो गया और उनकी सोहबत में उसे इतना मजा आया कि वो अपनी माँ को भूल गया। वो उनकी सोहबत के मजे उड़ा ही रहा था कि इतने में जंगल की तरफ से ऐसी गिरद उड़ती दिखाई दी कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। लड़कियों ने कहा, ए हसन, उठ और अपने कमरे में जाकर छुप जा, वरना बाग में जाकर दरख्तों और अंगूर की बेलों में छुप कर रहे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हसन जाकर अपने कमरे में छुप रहा और उसे अंदर से बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद गिरद फटी और उसमें से मुतलातिम समंदर की तरह एक जबरदस्त लश्कर निकला जो उस बादशाह के पास से आया था जो इन लड़कियों का बाप था। जब लश्कर वारिद हुआ तो लड़कियों ने उन्हें बेहतरीन जगह ठहराया और 3 रोज तक उनकी दावत की। फिर उनसे खैरियत खबर पूछी। उन्होंने जवाब दिया कि हम बादशाह के पास से तुम्हें लेने आए हैं। लड़कियों ने पूछा कि बादशाह हमसे क्या चाहता है। उन्होंने जवाब दिया कि एक बादशाह के यहाँ जश्न मनाया जा रहा है और वो चाहता है कि तुम भी आकर उसमें शरीक हो। लड़कियों ने पूछा कि हमें कितने दिन लगेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि जाना आना और 2 महीने। लड़कियां उठकर महल में हसन के पास गईं। उससे सारा माजरा बयान करके कहा कि ये मकान तेरा मकान है और हमारा घर तेरा घर है। तू खुश और इत्मीनान से रहे। डरने घबराने की कोई बात नहीं, किसी की मजाल नहीं कि इस जगह आ सके। हर किस्म का सामान यहाँ मौजूद है। हम अपने कमरों की कुंजियां तेरे पास छोड़े जाते हैं। लेकिन ये भाई, तुझे भाईचारे की कसम, फिलहाल दरवाजे को न खोलियो क्योंकि उसका खोलना तेरे लिए बेकार है। यह कहकर हसन से रुखसत हुई और लश्कर के साथ रवाना हो गई। हसन महल में अकेला रह गया और उनकी जुदाई की वजह से घबराने लगा। महल इतना बड़ा होने के बावजूद उसे तंग मालूम होता था। उसे वहशत होने लगी। लड़कियों के चले जाने के बाद हसन अकेला रह गया तो उसकी तबीयत घबराने लगी। वो अकेला सैरो शिकार के लिए जाता, शिकार मारकर उसे ज़िबा करता और अकेला खाता। जब तन्हाई की वजह से उसे वहशत और घबराहट होने लगी तो वो उठकर चारों तरफ घूमने लगा। दिल पहराने के गर्ज से उसने लड़कियों के कमरे खोले और देखा कि उनमें इतनी दौलत भरी पड़ी है कि जिसका हिसाब अकल भी नहीं कर सकती। लेकिन लड़कियों के ना होने की वजह से उसे उसका कोई मजा ना आया। जिस दरवाजे के बारे में उसकी बहन ने कहा था कि उसे हरगिज न खोलियो बल्कि उसके पास तक न भटकियो, उसके लिए हसन के दिल में एक आग सी लगी हुई थी और वो अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बहन ने इस दरवाजे को न खोलने के लिए जरूर इस वजह से कहा होगा कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो वो नहीं चाहती कि कोई देखे। कसम है खुदा की, मैं इसे खोल कर देखूंगा कि इसमें क्या चीज है, ख्वाह मौत ही क्यों ना हो। यह कहकर उसने कुंजी से वो कोठरी खोली और देखा कि उसमें माल और दौलत कुछ भी नहीं। लेकिन गौर जो किया तो अंदर एक जीना दिखाई दिया जो सलेमानी पत्थर का बना हुआ था। उस जीने पर चढ़कर वो महल की छत पर पहुंच गया और अपने दिल में कहने लगा कि उन्होंने बस इसीलिए मुझे मना किया था। अब वो छत पर घूमने फिरने लगा और उसने देखा कि महल के नीचे
बहुत से खेत और बाग और दरख्त और फूल और जानवर चिड़ियाएं हैं जो चहचहा रही हैं, और वो यकता और जबरदस्त खुदा की पाकी बयान कर रही है। वो उन सैरगाहों के मुतालिक सोच रहा था कि उसे बहुत बड़ा मौजन समंदर दिखाई दिया। वो इस महल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते लगाते एक बैठक के पास पहुंचा जिसके नीचे 4 खंभे थे और ऊपर एक चबूतरा था जिसमें याकूत और जमरुद और बलखिश और तरह तरह के जवाहरात के नक्शो निगार थे, और एक एक ईंट सोने चांदी याकूत और जमरुद की थी। उस बैठक के बीच में एक हाउस था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द संदल ओद की चौखटियों में सुर्ख सोने और हरे जमरुद की जालियां लगी हुई थी, जिनमें कबूतर के अंडों के बराबर तरह तरह के हीरे और मोती जड़े हुए थे। हौज की एक तरफ ओद का एक दरख्त पड़ा हुआ था जो मोती और जवाहरात से मुरसा था। कुंदन की जालियां थी और रंग बरंग के जवाहरात से ऐसा जड़ाव के आदमी देखा करे। हौज के चारों तरफ चिड़िया मुख्तलिफ आवाजों में गा रही थी और उनकी खुश आलाहानी और चेह अल्लाह अल्लाह अपनी बोलियों में ही खुदा की पाकी के नगमे गाए जा रहे थे। उस महल का जवाब न कसरा के पास होगा न कैसर के पास। हसन उसे देखकर दंग हो गया और बैठकर इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगा। वो बैठा हुआ उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब कर रहा था। उसने देखा कि जंगल से महल की तरफ 10 चिड़िया आई। हसन समझा कि वो हौज पर पानी पीने आ रही है। वो इस डर से चुप गया कि कहीं उसे देखकर वो भड़क न जाए। अब चिड़ियाएं उतरकर एक खूबसूरत दरख्त के गिर्द फुदकने लगी। हसन ने देखा कि उनमें एक चिड़िया औरों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसके इर्द गिर्द दूसरी चिड़ियां उड़ रही थी। हसन को बड़ी हैरत थी कि वो चिड़िया बाकी 9 चिड़ियों पर चूंच मारती और उन पर अपनी बड़ाई जिताती है और वो उससे भागती हैं। हसन दूर खड़ा हुआ ये तमाशा देखता रहा। अब वो सारी चिड़ियाएं तख्त पर बैठ गई और पंजों से अपनी अपनी खालें फाड़ने लगी और परों का लिबास उतारकर 10 पाकीज़ा लड़कियां बन गई, जिनके हुस्न के आगे चांद भी मात था। बरहना होकर वो सब हौज में उतरी और नहाने खेलने और हंसी मजाक करने लगी। सरदार चिड़िया उन्हें धकेलती और डुबकियां देती और वो उससे भागती, मगर उनकी ये मजाल न होती कि उसकी तरफ हाथ बढ़ाए। हसन उसको देखते ही लड्डू हो गया। उसके हवास जाते रहे और उसे यकीन आ गया कि लड़कियों ने उसी वजह से मना किया था कि मैं इस दरवाजे को न खोलूं। उसकी रानाई, बाकी अदाएं और हुस्न का अंदाज देखकर हसन की तबीयत बेचैन हो गई। दिल हाथ से जाता रहा। खड़ा देखता का देखता रह गया और ये हसरत करने लगा कि काश वो उनके साथ होता। होश ठिकाने न थे, कलेजा धड़क रहा था। आंख देखने में महू थी और तन बदन में एक आग सी लगी हुई थी और उसका नफ्स बुरे काम का हुक्म दे रहा था। वो उस नौबहार हुस्न की गुलचीनी के इश्तियाक में रोने लगा और सर से पांव तक भट्टी बन गया और ऐसे शोले उठने लगे जिनका बुझाना मुश्किल पड़ गया। इश्क ने ऐसे टोके लगाए जिसका असर छुपाए न छुप सका। अब लड़कियां हाउस से बाहर आईं। हसन उन्हें देख रहा था मगर वो उसे न देख सकती थी। पानी से निकलकर सब ने अपने अपने कपड़े और जेवर पहन लिए। बड़ी ने एक सब्ज पोशाक ज़ेब जिस्म की और दुनिया की तमाम हसीनों से हसीन तर मालूम होने लगी और चाल की लचक में वो टहनियों पर सबकत ले गई और अकल उसे देखकर दंग रह गई। लड़की का हुस्न जमाल देखकर हसन के होश आवाज जाते रहे। जब लड़कियां अपने कपड़े पहन चुकी तो बैठकर बातचीत और हंसी मजाक करने लगी। हसन खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था और अपने इश्क के समंदर में गर्क था और अपने दिल में कह रहा था कि खुदा की कसम, मेरी बहन ने उन्हीं लड़कियों की वजह से मुझसे कहा था कि मैं इन दरवाजों को न खोलूं ताकि कहीं मैं उनमें से किसी से फंस न जाऊं। अब हसन उसके एक एक उज़ू को देखने लगा। उसका मुंह सलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तरह था, काले काले बाल जैसे आशिक के ऊपर हिजर की रात, पेशानी रमजान के ईद का चांद, आंखें जैसे गजालों की आंखें, नाक सुतून और चमकदार, दोनों रुखसार शकायकुल नौमान, दोनों होंठ मरजान, दांत मोती की लड़ी, गला बेत की शाख के ऊपर चांदी का डाला, राने मोटे मोटे मरमर के सतूनों की तरह जैसे शतरमुर्ग के परों से भरे हुए 2 तकिए। ये लड़की बेत की शाखों और खीजान की छड़ियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। लड़कियां खुशखलियां करती रहीं और हसन बराबर खड़ा उन्हें देखता रहा। वो खाना पीना तक भूल गया था, यहाँ तक कि असर का वक्त आ गया और उस लड़की ने अपनी हमजोलियों से कहा कि ए शहजादियों, रात होने को आई है, हमारा मुल्क दूर है और हम यहाँ बैठे बैठे थक भी गई है, चलो अब हम घर चलें। सब ने उठकर परों की पोशाक पहन ली और पहले की तरह चिड़िया बनकर एक साथ उड़ गईं। आसपास दूसरी थी और बीच में वो लड़की। जब हसन उनसे नाउम्मीद हो गया तो उसने चाहा कि उठकर नीचे उतरे, लेकिन उसमें उठने तक की सकत न थी। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। बहरहाल हसन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और उल्टा सीधा चलते चलते महल के नीचे उतरा और बड़ी मुश्किल से कोठरी के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर जाकर उसे बंद कर लिया। बीमार होकर लेट गया, न खाता न पीता, बल्कि फिक्र में डूबा रहता। फिर वो रोने पीटने लगा और रात भर रोता पीटता रहा। जब सुबह हुई और सूरज निकला तो उसने कोठरी का दरवाजा खोला और उसी जगह पहुंचा जहां वो कल गया था और उसी मंजर के सामने रात तक बैठा रहा, लेकिन कोई चिड़िया ना आई। वो जारो जार रोने लगा, यहाँ तक कि गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो घिसटता हुआ महल के नीचे उतरा। रात हो गई थी
اور وہ ہر چیز اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وہ رات بھر برابر روتا اور آہذاری کرتا رہا، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا۔ ٹیلوں پر اور گھاٹیوں میں دھوپ نکل آئی۔ وہ نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ اسے چین آتا، بلکہ دن بھر پریشان رہتا اور رات بھر بیدار، مغموم اور بے چین۔ جب حسن سنار کا عشق بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ برابر اشعار پڑھا کرتا، اور چونکہ وہ محل میں اکیلا تھا اس کا دل ہرگز نہ بہلتا۔ وہ اسی پریشانی میں تھا کہ اسے جنگل کی طرف سے گرد اڑتی دکھائی دی۔ وہ نیچے آ کر چھپ گیا اور اسے یقین ہوا کہ محل والے آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لشکر اتر کر محل کے آس پاس پھیل گیا۔ دوستو، اس کہانی کو یہی ختم کرتے ہیں اور اس کا دوسرا پارٹ بناتے ہیں۔ دوستو، بقیہ کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ ہمارا حصہ بن جائیں گے اور اس سے ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی۔ بقیہ کہانی کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔